आज ईदच्या निमित्ताने शाहरुख खान पत्रकार परिषद घेतोय. थेट जाऊयात त्या पत्रकार परिषदेत. To go out publicly does not mean you want to be an actor. You go out publicly does not mean you want to be an actor, or maybe you want to. But the point is very clear. I mean, like I said, I requested everybody, and I say it with love. I understand it's a job. They're not movie stars. They just happen to be a movie star's children. And I think they're very respectful and they're very decent. When they come out with me, I make sure that they stand and do a picture because I know it's meant to be important. I don't know how, but it is meant to be important. So I request everybody that, maybe if you see them publicly, two things don't assume. One, that they're movie stars, so they'll be able to handle media like I do. If you come even in hundreds, I know you're my friend, so I can tell you, thoda piche hat jao yaar. They get awkward. And secondly, just because they come out publicly does not mean they want to be actors. As a matter of fact, जो स्कूल है मैंने सुना है जब लोग एक्टर बनना चाहते हैं तो पब्लिकली नहीं आते कि कोई देखे ना उनको, कैमरा पे ना आए, सीधा फिल्म के अंदर आए. So no, my children will finish their studies. मेरे घर में मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होने की, वरना मेरे घर के अंदर एंट्री नहीं मिलती. So they have to finish their college. Savannah is still in 11th. She has 4 or 5 years of studies left. Aryan has about 4 years. And like I've said, if they want to be actors, Savannah wants to, then she will study to be an actor. And so there's a long way to go here. Just because she comes out publicly does not mean that we are taking her out in public, so दुनिया उसको देख के heroine बना दे. No, I'm an outsider. I came from Delhi. I never came out publicly. I just came in films. I hope my children do that once they are educated enough to do it. Shahrukh sir, how did you inspire yourself from last 25 years? Actually, people inspire me. Like say today's little thing कि घर के बाहर इतने लोग, इतनी फिल्म एक्टर्स जब इतने साल से काम करते हैं तो उनका जो रोल होता है, आई थिंक बिकम्स अ लिटिल बिगर देन जस्ट बीइंग एक्टर्स. लोग अपनी होप्स, अपनी एस्पिरेशंस, अपनी जिंदगी की चीजें इंडिया में स्पेशली एक्टर्स के साथ लगा देते हैं, जो शायद सही नहीं है. ये नहीं है कि हम सबसे अच्छे लोग, बट यू स्टार्ट फीलिंग दैट पीपल लव यू फॉर अदर रीजंस देन जस्ट बीइंग एन एक्टर. तो वो जो लव है वो अनएक्सपेक्टेड है. वो मैं कभी सोचा नहीं कितना मिलेगा. कहीं पे भी चले जाओ दुनिया के, हम अभी यूरोप में शूट कर रहे थे हैरी मेट सेजल, ऐसी जगहों में जहाँ मैं कभी गया नहीं पहले, बुडापेस्ट में सड़कों पे सारे इंडियंस आके खड़े हो जाते हैं, लोग आके खड़े हो जाते हैं और इतना प्यार देते हैं, ऐसा लगता है हर देश जो है हमारा ही देश है. जेन्युइनली आई रियली रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट इंडियंस हैव स्प्रेड सो फार एंड वाइड. तो इतना प्यार मिलता है, सो यू स्टार्ट फीलिंग कि यार दिस मस्ट बी स्पेशल, एंड इफ इट इज स्पेशल यू नीड टू वर्क रियली हार्ड टू मेक इट वर्थ while for everyone else who thinks you are special. So that inspires me a lot. शायद खाने की बात की आपने, ईद के मौके पर आपको ऐसी कौन सी खास डिश है जो बहुत? मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं खाते पीते घर का हूँ. मुझे खाने का इतना शौक नहीं है, बट जो भी बना होगा मैं खा लूंगा. और बहुत सारे दोस्त लोग हैं, अभी भेजेंगे चीजें. आई एम श्योर सलमान के घर से भी आएगी बिरयानी, मेरे 2-4 दोस्त हैं, तो वो सब मिक्स करके मैं सब खा लूंगा. खान साहब, अब तक की सबसे यादगार ईदी आपके लिए क्या थी? I mean, just because I don't have parents anymore, I think must be the last few memories of spending Eid with them. To go and say your prayers and then come back home, sit with the family. फिर उनके दोस्त थे कुछ माँ बाप के, तो उनके घर में जाना. हालांकि बचपन में बड़ा बोरिंग लगता था माँ बाप के दोस्तों के घर जाना, but now I think of it and I remember I was just talking about it before coming here. तो अच्छा लगता था, घर में जाओ, बहुत सिंपल होता था. इतना सॉरी मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ईद होगी. बड़ी सिंपल सी होती थी, 4-5 लोग बैठे हैं, अपना बातचीत की, खाना खाया एंड घर आ गए. सो आई थिंक दोज आर वेरी स्पेशल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तू तो रह गया. ईद मुबारक. ईद मुबारक आपको भी. would like to thank you firstly for like staying up for quite some time. 5 मिनट अच्छे विजुअल्स मिल गए. आप 2 मिनट आ जाते थे ना तो बेचारे रह जाते थे, तो you give ample time thanks to you. अब 25 साल हो गए ना, अच्छा एक्टर बन रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ. और दूसरी बात ये है कि आपके यहाँ जैसे मतलब आई सी लाइक लॉट्स ऑफ एवरीवन कम अप ड्रेस्ड अप, you look nice. It's a good feeling coming here. पूजा अच्छी लग रही है. शिल्पा आज अच्छी लग रही है. वैसे नहीं लगती. वैसे शिल्पा अच्छी नहीं लगती, अलग लगती. आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो. आई थिंक सबके सब अच्छे लग रहे हो. एंड नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे कि ईद में ना सब ड्रेसअप होके आते हैं, सबके सब ऐसा रूल बनाते हैं और काम करने की जरूरत नहीं है. 5 मिनट काम करेंगे और उसके बाद हम सेलिब्रेट करें. 2018 में. हाँ, 2018 में.
With time, do you think you have become spiritual and philosophical with time? दार्शनिक और आध्यात्मिक हो गए की तरफ? नहीं यार, आई थिंक when you have children, I have 3 of them, I think you start becoming gentler. और फिर जो पुरानी बातें हैं जो बचपन में शायद लगती थी कि ठीक ठाक हैं, ऐसे इतना हम उसको जो फलसफे होते थे, अच्छी बातें होती थी, उन पर इतना ध्यान नहीं देते थे. बट एज यू ग्रो ओल्डर, आई थिंक यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स. और बीइंग एन एक्टर एंड अ प्रोड्यूसर, कई बारी मैं वो चीजें अपनी फिल्मों में भी लेकर आता हूँ, जो कहानियां सुनी हुई हैं या मोमेंट सुनी हुई हैं. आई विल नॉट बी एबल टू से कि मैं अब एज के साथ फिलोसॉफिकल हो गया. मेरे घर वाले तो बोलते हैं मैं 15-20 साल से ही बोर कर रहा हूँ अपनी फिलोसफी से. सो ऐसा नहीं है कि अभी हो गया मैं. बट या आई डू थिंक गुड थिंग्स, आई डोंट थिंक बैड थॉट्स, एंड आई लाइक टू रीड अ लॉट एंड अंडरस्टैंड दूसरे लोग कैसी सोचते हैं. सो ऐसा नहीं, एज के साथ नहीं. आई थिंक अपनी अपनी एक कुव्वत होती है, अपना एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, आदमी कैसा बनता है. Do you write also something? You read a lot. I write sometimes. जब मैं अकेला आउटडोर पे होता हूँ तो लिखता हूँ. अमूमन घर में तो वक्त ही नहीं मिलता. बट इफ आई एम आउटडोर, पैकअप हो गया, आई एम सिटिंग इन द रूम, देन आई राइट. Thank you so much, guys. Thanks. हाँ, वो एक बुक है यार, वो खत्म ही नहीं हो रही. मतलब ऐसे एक्चुअली वो यही थे, 20 साल फिल्म इंडस्ट्री में के बारे में थे. तो मैं अभी लिख रहा हूँ. तो मैं पहले भी बताया भाई ये बात. एक्चुअली मैं चाह रहा था कि मेरा जब बेटे का जन्म हो, आर्यन का, तो किताब खत्म हो. फिर बेटी का हो गया तो मुझे लगा गलत है, बेटी के जन्म पे खत्म हो. अब अब्राहम का हो गया और वो काफी वक्फे बाद हुआ है, 10-11 साल बाद. तो अब है कि वहां तक लेके आनी है मुझे कहानी. सो आई थिंक वो सब अच्छा हैप्पी होगा. बट इट इज जस्ट मोमेंट्स आई हैव स्पेंट विद ऑल ऑफ यू एंड द फिल्म इंडस्ट्री एंड वर्किंग इन. इतनी टेक्निकल किताब नहीं है. इट्स अ ह्यूमरस और फिलोसॉफिकल इमोशनल बुक. पहले मैंने लिखा था 20 years of a decade. तब ऐसा लिखा था कि 10 साल में ऐसा लगता है 20 साल की जिंदगी जी. अब तो 25 हो गए. तो आई थिंक वो टाइटल थोड़ा गलत हो गया हुआ. शाहरुख खान ने कहा है कि फिल्म का अपने फर्स्ट शेड्यूल पूरा कर लिया. तो फिल्म के बारे में अगर आप फिल्म के बारे में तो नहीं बोलूंगा ज्यादा, क्योंकि वो उनका वेदर ही लाइक्स टू टॉक अबाउट इट. बट जैसे सबको मालूम है, फिल्म इज अबाउट vertically challenged person, as they say, special. लेकिन मुझे बहुत मजा आया. और टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी फिल्म देश में बनाना, यू नो, टू जेन्युइनली, मैं ऐसा नहीं कह रहा किसी, टू मेक इन इंडिया दिस टेक्नोलॉजी इज क्वाइट ऑसम. और मुझे बहुत गर्व है कि हमारी टीम ऐसा कर रही है. हमने जैसे हॉबिट और बहुत सारी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, एंड हम बहुत लोगों से मिले. और जो हम कर रहे हैं, काफी लोगों ने कहा इस समय के अंदर द अमाउंट ऑफ टाइम विल स्पेंड पॉसिबल नहीं है. तो बहुत चैलेंजिंग है. हमने जैसा आपने कहा 12-15 दिन की शूटिंग कर ली और हमारे पास 11-12 मिनट फिल्म के एडिट है. अभी मुझे आनंद ने कहा है मैं थोड़ा और एडिट करके दिखाऊंगा. बट वी आर रियली वेटिंग कि वो जैसे ही वो वैसा हो जाए. बट उसमें बहुत वक्त लगता है. तकरीबन 30 सेकंड के लिए 2 महीने लगते हैं उसको फुली देखने में. सो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म दिसंबर में खत्म हो जाए. तो आज से शुरू हुई है जैसे, तो 15-16 महीने लगेंगे पूरी फिल्म को खत्म करने में. तो एज इज बीइंग डन, वो VFX में जा रही है. हमने नया ऑफिस बनाया गोरेगांव में, स्पेसिफिकली फॉर द फिल्म एंड अदरवाइज, क्योंकि बड़ी जगह चाहिए, एडिट, पोस्ट, DI, ये सब करना. सो बहुत एक्साइटिंग है. मतलब आई एम रियली डाइंग टू सी.